Hello friends, hope you are doing good. You must have completed my earlier lecture videos on kinematics. If you have not watched yet, then do watch from my channel, link given in description. We will see the solution of lecture 1 and lecture 2, check your understanding and challenge yourself questions. Let's start. Let us quickly go through how to find values in a given graph. Okay, suppose you have a graph given as xt position versus time, right? So what are the basic steps? I know you all are aware of this, how to calculate the values in graph, but still just recap. So steps will be from the point given from the given point on a horizontal axis, draw a line perpendicular to this axis towards the curve. Suppose you are asked to find at t equal to 5 seconds, here at t equal to 5 second, what is the position, right? So what you need to do is you just need to drop a perpendicular, okay, which will be this line, the dotted line which you can see, this will be perpendicular to the horizontal axis, okay, and wherever it will meet the this graph, so you mark the point, right? So that is what it is written here, mark the point on the curve where this line meets. So you have marked this point, this is the point where it meets the curve, okay. Then from that point draw a line perpendicular to the vertical axis and mark the point where it intersects this axis, means this dotted line what I have made here, okay. So from this point you will make dotted line towards which, towards the vertical axis, and this line, this dotted line should be perpendicular to this vertical axis, okay. So wherever this line intersects the vertical axis, that will be the value of position in that at that instance. So in this case what we will say, we will say that at t equal to 5 second, at t equal to 5 second, the position is how much? It is 10 meter. Got it? Similarly, if suppose you are required to find the values at value of position at t equal to 2, t equal to 1 second and 3 second. So you'll do the similar thing, you'll drop a perpendicular from line which is perpendicular to the horizontal axis from 1 second also, and from 3 second also, right? From these 2 points they will intersect here and here. Then again you will go towards, drop a perpendicular towards the vertical axis, right? So wherever it intersects you will get the value. So at t equal to 1 second you have the value of how much? It is 3 meters, and at t equal to 3 second you have the value of 6 meters, okay. So these are the values, like so, like this we will calculate the values of graph, right? Similarly, if you are given a velocity time graph, then what you will do, again you need to do the same things whatever we have done in xt, be it any graph, position time, velocity time, acceleration, whatever graph is there, we will calculate in the similar way. That means if you need to find the velocity at some particular instance given here, this mark, this point, okay. So again you will do the same thing, so you will get the value of 1 meter per second. If you are again required to find suppose the velocity at t equal to 1 second, then again the same thing, from here you will drop the perpendicular at here, so it will meet the this curve at this point, and again when you drop the perpendicular this side, so it will be 2 meter per second, right? So this is the way to calculate velocity. Again, if you're required to calculate at t equal to 3 seconds, then again do the same thing, you will get minus 1 meter per second. Understood? So this was the basic how to calculate the values from a given graph, right? Okay, now we will see the next slide. This is the solution to check your understanding question of lecture 1. Okay, two trains each having a speed of 30 km per hour are headed at each other on the same straight track, right? A bird that can fly 60 km per hour flies off the front of one train when they are 60 km apart and heads directly for the other train. On reaching the other train, the crazy bird flies directly back to the first train, and so on and so forth. ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, सबको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हो रहा होगा. ठीक है, मतलब दो ट्रेन अगर ऐसे एक दूसरे के सामने से इस तरह से, एक इधर जा रहा होगा एक इधर जा रहा होगा, ठीक है. तो जब वो लोग 60 किलोमीटर पे था, तो एक बर्ड होगा कोई विच स्टार्टेड, मतलब यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ उड़ के आया होगा, और साथ में ट्रेन भी चल रहा होगा, ठीक है. तो ये चीज बेसिकली पूछ रहा है. एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द बर्ड ट्रेवल्स बिफोर द ट्रेन्स कोलाइड. ठीक है, अभी इसमें सोचने वाली बात क्या है ये समझो पहले. देखो सिंपल सा चीज है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन तुम्हारा ये है, ठीक है. दे आर ऑन द सेम ट्रैक. तो ये जब 60 किलोमीटर अपार्ट था, ठीक है, 60 किलोमीटर अपार्ट था, तो यहाँ से बर्ड को उड़ना स्टार्ट करेगा.
तो इसमें लॉजिक तुम्हारा क्या आना चाहिए, तुम ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये क्या आना चाहिए कि इसमें तुम क्या निकाल लोगे कि बर्ड का डिस्टेंस निकल जाए। देखो सिंपल सा हिसाब है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड पूछ रहा है, राइट। अब तुमको पता होगा कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिंपली स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला है, राइट। तो अगर तुमको बर्ड का डिस्टेंस निकालना है डी, तो तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, उसका वेलोसिटी पता होना चाहिए, स्पीड पता होना चाहिए और उसका टाइम पता होना चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे स्पीड तुमको बर्ड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो ये निकाल ले अगर हम कि बर्ड कितना टाइम तक फ्लाई करेगा, ठीक है, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। ये बात समझ में आया पहला। ये सेकंड, अब ये जो टाइम था टी, ये टाइम टी क्या है बेसिकली, ये टाइम टी यही दिया हुआ है कि वो जो बर्ड है वो कंटिन्यूअसली इधर से इधर और इधर से इधर, मतलब एक बार इधर से इधर जा रहा है, एक बार इधर से जा रहा है, ये होता रहेगा कब तक, जब तक दोनों ट्रेन आके आपस में कोलाइड ना कर जाए, राइट। तो बेसिकली वो जो टाइम है टी, वो कैसे तुम निकाल सकते हो, अगर तुम टाइम निकाल लिए कि वो दोनों ट्रेन जब 60 किलोमीटर अपार्ट था उस समय बर्ड उड़ना स्टार्ट किया, तो टी इक्वल टू 0 है सपोज उस समय, ठीक है। और जब दोनों ट्रेन कोलाइड कर गया तो जब तक वो कोलाइड किया तब तक वो बर्ड उड़ रहा था, यानी कि अगर हम ये कोलिजन टाइम निकाल ले टी, तो वही टाइम तो होगा जो बर्ड कंटिन्यूअसली फ्लाई किया था, राइट। तो इसमें क्वेश्चन में जैसा लग रहा है ना कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से इधर गया, इधर गया, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। कि अगर टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू कोलाइड अगर निकाल लोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली बर्ड के स्पीड से, तो बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो इसी को अब हम लोग देखो इसको कैसे बनाना है। सपोज करो लेट द ट्रेन्स कोलाइड आफ्टर टाइम टी, मतलब यहाँ पे देखो ये ट्रेन 1 है, ये ट्रेन 2 है, दोनों जब 60 किलोमीटर अपार्ट था, एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ट्रेन D1, अगर मान लो D1 है, टी कितने टाइम में, टी टाइम में, टी टाइम दोनों चलेगा ना, टी टाइम बाद कोलाइड कर गया, मतलब टी टाइम तक ये भी चल रहा है, टी टाइम तक ये भी चल रहा है, ठीक है। तो पहला ट्रेन कितना डिस्टेंस चल गया होगा T1 टाइम में, उसका स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टी, सिंपली, तो 30 दिया होता है ना, 30 किलोमीटर पर आवर है उसका स्पीड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 30 टी। उसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड ट्रेन भी क्या होगा D2, वो भी होगा स्पीड इनटू टाइम सिंपली, ठीक है, दैट विल आल्सो बी 30 टी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि एक बार ये यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज D1, और ये यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल किया, दिस इज व्हाट, दिस इज D2, राइट। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टू ट्रेन्स वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, D1 प्लस D2 कर दो। समझ में आ रहा है। तो D1 प्लस D2 करोगे तो क्या आएगा 60T, 30T प्लस 30T 60T, और यही 60T किसके बराबर है, ये 60 किलोमीटर दिया होता ना, 60 किलोमीटर था इनिशियल। तो सिंस द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स इज 60 किलोमीटर, देयरफॉर 60T इज इक्वल टू 60, देयरफॉर टाइम इक्वल टू 1 आवर। कहने का मतलब है कि 1 घंटे के बाद वो दोनों ट्रेन आके आपस में कोलाइड कर जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसमें आप बोलोगे कि अब टाइम तो निकल गया, तो अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो बर्ड का निकाल सकते हो। कैसे, देखो सपोज करो ये तुम्हारा बर्ड था, ठीक है, देखने में भी सुंदर लग रहा है वैसे, ठीक है। तो ये बर्ड जो है ये जब 60 किलोमीटर पे था, इस इंस्टेंस पे ये बर्ड इधर से इधर जाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, ट्रेन इधर से इधर आ रहा है, ये ट्रेन भी कुछ आगे मूव कर गया होगा, तो ये पहली बार आके यहाँ पे मान लो बैठा होगा जब ट्रेन यहाँ पहुंच गया होगा, तो ठीक है, फिर यहाँ से तुरंत उड़ा होगा, फिर फर्स्ट वाले ट्रेन में, तो फर्स्ट वाला ट्रेन भी मान लो यहाँ पहुंच गया होगा, फिर ये इधर से इधर जाएगा, इस तरह से करता रहा जब तक दोनों कोलाइड नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना है कि बर्ड इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो उसको एक एक बार कैलकुलेट करोगे तब तो तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। इसमें सिंपल सा हिसाब है यार कि बर्ड चाहे ऐसे उड़े या सिंपली बर्ड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में उड़ता रहता इस तरीके से, ठीक है, तो भी उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा डेट विल बी सेम। क्यों, क्योंकि वो ये लिखा हुआ है ना इसमें कि द बर्ड जो था वो कंटिन्यूअसली उड़ रहा था। ऐसा तो नहीं था ना कि बीच में जाके सेकंड ट्रेन में गया और आराम से रुक गया, पहले 5 सेकंड वहां रुका रहा, उसके बाद फिर से उड़ा, ऐसा तो नहीं हुआ। वो कंटिन्यूअसली इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर कंटिन्यूअसली उड़ता रहा, कितने स्पीड से, सेम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि ये जो बर्ड है ये सिंपली 60 किलोमीटर पर आवर से एक स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा था, ठीक है। तो तुम इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते थे क्या कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया होगा, सिंपली उसका जो स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर और उसको मल्टीप्लाई करते थे किससे, ये जो टाइम आया था, टाइम टेकन टू बाय द ट्रेन्स टू कोलाइड, तो बस वही करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जिन लोगों ने बनाया होगा बहुत अच्छे से सोच लिया होगा उन लोगों ने, ठीक है। तो द बर्ड फ्लाइज एट 60 किलोमीटर पर आवर कंटिन्यूअसली बिटवीन द टू ट्रेन्स टिल दे कोलाइड। तो द बर्ड फ्लाइज कितने देर तक उड़ा, 1 घंटे तक। तो डिस्टेंस ट्रैवल इज हाउ मच, सिंपली स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम 1 आवर, तो कितना हो गया आंसर 60 किलोमीटर। समझ में आया। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एनीवेज ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
This is also solution to check your understanding question of lecture 1. Figure shows xt graph of a particle. Mark the point on the graph at time t where the average velocity of the particle during the period 0 to जो भी वो टाइम जो तुम मार्क करोगे, मतलब t कोई टाइम मार्क करोगे ना, यहाँ हो, ये हो, जो भी हो, ये टाइम एक्सिस है ना तुम्हारा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जिस भी पॉइंट पे, मान लो अगर हम ये टाइम मार्क करते तो यहाँ पे क्या आता, इसका पोजीशन कुछ यहाँ आता, समझ में आ रहा है। अगर हम t इक्वल टू मान लो 12 सेकंड ही मार्क करते तो इसका क्या आता, ये पोजीशन आता। t इक्वल टू 14 मार्क करते तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन आता, समझ में आ रहा है। तो ये टाइम जो t जो भी मार्क करोगे तो वो पीरियड 0 टू t के बीच में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। अब हमको बताओ ये कौन कौन इसको सही से सोचा है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताना कि कितने लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक। इसमें अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या, तुमसे पूछा क्या गया है, तुमसे सिंपली पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। तो पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है, चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाई टाइम, t2 माइनस t1, यही होता है। इसको यहाँ पे लिख लोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ठीक। अब बताओ मुझे कि अगर v एवरेज को हमको 0 करना है, ठीक है, v एवरेज को अगर 0 करना है तो मुझे करना क्या होगा बेसिकली, अगर सिंपली हम x2 जो उसका फाइनल पोजीशन है वो इक्वेट कर दे उसके इनिशियल पोजीशन से, तो x2 माइनस x1 विल बिकम हाउ मच, 0। और लॉजिकली भी अगर सोचोगे तो होना यही चाहिए था ना भाई, क्या होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी 0 कब हो सकता है, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो। अगर पार्टिकल जिस पॉइंट से चला था उससे कुछ आगे तक गया, फिर वापस वहां से घूम के फिर उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। तो बेसिकली चाहे ग्राफ रहता या वैल्यूज रहता, कुछ भी रहता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तुमको ग्राफ, अगर इस केस में ग्राफ दिया हुआ है तो तुमको कौन सा पॉइंट फाइंड करना है ग्राफ में, वो पॉइंट फाइंड करना है जब पार्टिकल दोबारा से उसी पॉइंट पे पहुंच गया x इक्वल टू 20 मीटर पे, समझ में आ रहा है। तो v एवरेज विल बी 0 व्हेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल अगेन बिकम्स 20 मीटर, सिंपली। तो ये ग्राफ को देखते चलो, यहाँ से यहाँ ग्राफ नीचे आ रहा है तो यहाँ कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो 10 है वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ोगे यहाँ पे भी नहीं है, t इक्वल टू 10 सेकंड्स में भी कुछ और वैल्यू है, लेकिन t इक्वल टू 12 सेकंड्स में अगर देखोगे, t इक्वल टू 12 सेकंड में देखेंगे तो कैसे देखेंगे t इक्वल टू 12 सेकंड में। अब इसमें उल्टा चलेंगे हम लोग, कैसे चलेंगे, जब मुझे 20 मीटर से निकालना था ना, ये वैल्यू निकालना है, राइट, कि ये 20 कब होगा, तो इसके परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ करेंगे और वो पॉइंट, ये जो रेड वाला जो पॉइंट यहाँ बना हुआ है, ठीक है, उस पर आके मीट करेगा कर्व पे। अब इस वाले पॉइंट से तुम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे कहाँ पे, टाइम एक्सिस पे। तो टाइम एक्सिस को वो जहां कट करेगा तो यहाँ पे कट करेगा, तो वही उसका वैल्यू होगा टाइम का। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 12 सेकंड। तो बहुत सिंपल है, टाइम एट विच पोजीशन बिकम्स 20 मीटर इज हाउ मच, t इक्वल टू 12 सेकंड। सो ड्रॉप कैसे निकाले, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ग्राफ एट x इक्वल टू 20 मीटर पॉइंट। 20 मीटर पॉइंट कैसे निकाले वो समझ में आ गया, ये 20 मीटर था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे टुवर्ड्स किधर, द कर्व, तो ये कर्व को आके यहाँ मिल लिया तो वो हो गया, फिर वहां से फिर नीचे ड्रॉप कर दिए पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस, तो यहाँ से तुम्हारा निकल गया। क्लियर है कि एवरेज वेलोसिटी 0 जब भी तुमको निकालना होगा तो तुमको करना क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन होगा, तभी उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्यूशन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम लेक्चर 1। अ पॉइंट ट्रेवर्स मतलब ट्रेवल्ड हाफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v0, ठीक है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड, ये ध्यान से देखना, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, वॉज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम, ठीक, एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ ऑफ द टाइम। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। अब तुमको एवरेज वेलोसिटी पूछा तो तुमको क्या पता होना चाहिए कि टोटल अगर उसका तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल दोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है। तो इसमें तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, पहले तो तुम एक डायग्राम बना लोगे कि आखिर हुआ क्या इसमें, ठीक है। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या बनाया है हमने, लेट द टोटल डिस्टेंस, मान लो ये पी आर, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से पी से लेके आर तक, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है मान लो 2D, मतलब यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जर्नी है उसका, ठीक है, उस पॉइंट का। तो अब क्या बोला उसमें कि हाफ, पहले बोला है ना, पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, मतलब ये जो हाफ डिस्टेंस है क्या, pq, ये pq मेरा d है। अगर हम पूरे pr को 2d माने, देखो यहाँ लेट द टोटल डिस्टेंस pr इक्वल टू 2d, तो सच दैट pq इक्वल टू qr, मतलब q इज द मिड पॉइंट, ये जो है दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ pr, ठीक है। तो pq इक्वल टू qr इक्वल टू क्या होगा, d, दोनों d, हाफ डिस्टेंस। क्लियर है। तो टाइम टेकन टू कवर pq, ये वाला डिस्टेंस, ये कितने, ये
कौन से वेलोसिटी से चल रहा है, v नॉट से चल रहा है, राइट। तो टाइम टेकन कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी। तो t1 टाइम अगर हम मान लिए कि pq को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, t1 pq को कवर करने में, राइट। तो pq को कवर करने में अगर t1 टाइम लगा तो t1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंपली d बाई वी नॉट, d उसका डिस्प्लेसमेंट है ये वाला d, और v नॉट उसका वेलोसिटी है। क्लियर है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसमें आगे वाला खाली देख लो कि क्या करना है। आगे क्या पूछे बता रहा है तुमको, है एक्चुअली सिंपल, बस वो राइटिंग अगर अच्छे से समझोगे ना कि क्या बोल रहा था तो तुमको क्लियर हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब रिमेनिंग पार्ट क्या डिस्टेंस है मेरा, ये यहाँ से लेके क्यू आर, दिस इज द माई रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस, ओके। was covered with velocity v1 for half the time, अब यहां समझना जरूरी है, and with velocity v1 for the other half of the time, मतलब कि अगर मान लो ये जो qr डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये qr डिस्टेंस को पूरे qr डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसका टाइम t लगता सपोज, ठीक है, तो वो बोला कि इस टाइम का हाफ ऑफ द टाइम, मतलब t बाई कितना, t बाई 2, तो t बाई 2 टाइम तक वो कितने वेलोसिटी से चलेगा, v1 से चलेगा, समझ में आ गया। और रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम में वो कितने चलेगा, v2 से चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों टाइम इंटरवल में जब v1 होगा और टाइम कितना होगा t बाई 2, ठीक है, तो इसमें वो कुछ एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और जब उसका v2 होगा और टाइम होगा वही सिंपली t बाई 2, तो इसमें कोई कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन दोनों का सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, इस d के बराबर। यही तो लॉजिक होगा ना, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, जितना होगा दोनों को जोड़ देंगे इंडिविजुअली तो वो क्या आ जाएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल किया था, ठीक है। तो इतना दूर जो सोच लिया बस उसका क्वेश्चन बन गया, अब इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो यही चीज है इसमें लिखा हुआ, लेट द टाइम टेकन टू कवर क्यू आर बी टी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ v1 फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, तो कितना होगा, v1 उसका वेलोसिटी था और टाइम कितना था, t बाई 2, ये t है टोटल टाइम, तो हाफ ऑफ द टाइम t बाई 2 होगा, तो v1 इंटू टी बाई 2 सिंपली, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विथ v2, जब वो v2 चल रहा था उसके बाद, तो फॉर सेकंड हाफ ऑफ द टाइम विल बी हाउ मच, v2 इंटू टी बाई 2, सिंपल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो क्यू आर होगा क्या होगा, दोनों का सम होगा, तो क्या होगा v1 इंटू टी बाई 2, और वही इक्वल टू किसके बराबर होगा, d के बराबर, ये d जो दिया हुआ था ये d, दिस d, ठीक है। तो इक्वल टू v1 मल्टीप्लाइड बाई t बाई 2 प्लस v2 इंटू टी बाई 2, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम, तो ये जो टाइम था, अब हम बेसिकली यहाँ से ये टाइम निकाल लें, क्योंकि मेरा एम क्या है कि v एवरेज, ठीक है, इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी हमको मालूम है, खाली हम अगर टोटल टाइम जर्नी का निकाल ले तो मेरा आंसर बन जाएगा, तो इसलिए हम टाइम निकालना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हमने क्या निकाला था, पहले केस में भी हमने पहला t1 निकाल लिया, अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सेकंड हाफ के लिए टाइम निकाल रहे हैं, तो वहां से ये निकल गया t इक्वल टू कितना आया, 2d बाई v1 प्लस v2, ठीक है। इसको मतलब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये यही आएगा 2d बाई वी वन प्लस वी टू, ठीक। तो टोटल टाइम टू कवर पी आर मतलब कहाँ से कहाँ, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, सिंपल है, t1 प्लस t पहला हाफ प्लस दूसरा हाफ, और टोटल डिस्प्लेसमेंट पी आर कितना है 2d, ये भी मुझे मालूम है, ये d प्लस d, तो ये 2d हो गया, ठीक। तो अब बस तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, अब तुम सीधा फॉर्मूला लिख दो, वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है वी एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2d, और टाइम टोटल कितना है t1 प्लस टी, सबका वैल्यूज रख दो, तो 2d डिवाइडेड बाई d बाई वी नॉट प्लस 2d बाई वी वन प्लस वी टू, तो वी एवरेज का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वी एवरेज बेसिकली वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई वी वन प्लस वी टू होल डिवाइडेड बाई 2v नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ये बताना मुझे कि किसका किसका ये चीज सही हुआ था, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन I.E. इरोडोव प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स, नाम पता नहीं तुम लोग सुने हो कि नहीं, लेकिन अब जान जाओ, I.E. इरोडोव जो है रशियन ऑथर, उनका एक बुक है, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। तो उससे जो लेकिन उसमें ऐसा है ना कि बहुत टफ लेवल के प्रॉब्लम थे जो +2 लेवल के स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसमें तुमको ग्रेजुएशन लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जो भी मुझे उसमें से सही लगता है वो क्वेश्चन को मैं चुन के यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो वो इसी का क्वेश्चन था, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वॉज ऑल्सो फ्रॉम योर चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेक्चर 1, अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली इन वन डायरेक्शन, ठीक है, figure shows the distance s in meters traveled by the point as a function of time t in second, using the plot find average velocity of the point during the time of motion t equal to 0 to 20 equal to 20 second। ये तो सबका बन गया होगा, बहुत इजी है, t इसमें तो कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है यार मेरे को,
ये क्या होता है, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन क्या था, x1 इक्वल टू जीरो, यहीं पे है ना t, ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0,0 राइट। t इक्वल टू जीरो पे x1 कितना है 0, और t इक्वल टू 20 पे x2 कितना है 2 मीटर, निकाल लो t इक्वल टू 20, ये तो बताया था ना कि ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये वाला पॉइंट आया, और इसके इधर अगर जाके ड्रॉप करोगे तो कितना आ रहा है, दिस इज 2 मीटर राइट। तो सिंपली x2 इज 2 मीटर, तो v एवरेज इक्वल टू क्या हो गया x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, तो सॉल्व कर लो 0.1 मीटर पर सेकंड, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये समझने वाली बात है। अब बताओ मुझे कोई कि मैक्सिमम वेलोसिटी या फॉर दैट मैटर वेलोसिटी निकालने के लिए अगर एक पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, सिंपल है ना, बताया था ना, वेलोसिटी इज बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन राइट विथ टाइम। तो dx बाई dt यानी कि स्लोप, जो भी ग्राफ दिया हुआ है अगर उसका स्लोप निकाल लो, x पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, अगर उसका स्लोप निकाल लोगे dx बाई dt किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे क्या देगा, उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा राइट। तो इस केस में अगर तुम अपने मतलब इस ग्राफ को अगर देखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो dx बाई dt स्लोप होता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक, तो सपोज करो तुम मान लो ये पॉइंट को चुनते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक क्या ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और इसका एंगल निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये जो थीटा टैन थीटा का जो वैल्यू आता है यहाँ पे, मेरा टैन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है, हमारा स्लोप होता है उसका, ठीक है, और वही इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, मतलब थीटा जिस भी टेंजेंट का थीटा ज्यादा होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो वहां उस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो तुम उसी तरह करते जाओगे, हर पॉइंट पे निकालते जाओ। तो फिर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे देखते हैं, तो इस एक्चुअली इस पॉइंट से अगर देखोगे अच्छे से, इस पॉइंट से लेके, है ना, कहाँ तक, इस पॉइंट तक, देखो ये वाले पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ पे देखो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये एकदम स्ट्रेट गया है लाइन, ठीक है, तो इसका स्लोप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सेम रहेगा टैन थीटा, क्योंकि ये थीटा यही बनाएगा ना, जो ये थीटा यहाँ बना रहा होगा, यही थीटा हर जगह बनेगा, ठीक है, चाहे यहाँ ड्रॉ कर लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ करोगे तो ये सेम एंगल थीटा बनता जाएगा, समझ गए। तो अगर तुम इस पॉइंट पे कहीं भी बनाते तो इसका एंगल कुछ ये होता, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है, फिर अगर मान लो इस पॉइंट पे अगर तुमको बनाना होता तो तुम क्या करते, मान लो इस पॉइंट पे बनाना था तो तुम फिर से क्या करते, यहाँ पे फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ करते इस तरीके से, मान लो, तो इसका एंगल फिर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तुम ऐसे भी कर्व को देख के बता सकते थे कि इस पॉइंट का एंगल जो है, ये जो थीटा है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आ रहा है इससे, और यहाँ के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ जो तुम टेंजेंट ड्रॉ किए थे तो इसके इन सब के रिस्पेक्ट में ये होता, तो यानी कि इस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो बेसिकली एनीवेज, अब इसको देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन इसका एक्चुअल में करते हैं हम। तो velocity is calculated as slope of tangent in position time graph with proper sign मतलब बताया था ना, अगर टाइम एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में है तो यू विल टेक इट एज पॉजिटिव राइट, और एक्यूट एंगल होना चाहिए, और अगर टाइम एक्सिस के अगर नीचे है ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज में, तो इट विल बी नेगेटिव राइट, ये सबको पता है। चलो एनीवेज, तो वही इसका मतलब था, टाइम ग्राफ विद प्रॉपर साइन, तो ग्रेटर द स्लोप तो ग्रेटर इज द वेलोसिटी, बात सही है जो अभी हम तुम लोग को समझाएं। तो अब इस ग्राफ में अच्छे से देखते हैं, देखो मैं यहाँ पे देखो हमने 3 पॉइंट लिया है, ठीक है, P Q एंड, ये है P पॉइंट, दिस इज Q एंड दिस इज R, 3 पॉइंट लिया कर्व में, XT कर्व में, ठीक है, और इन तीनों पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, उसका वेलोसिटी निकालेंगे। तो P पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना होगा, वहां पे स्लोप निकालना होगा, स्लोप निकालना मतलब टेंजेंट, तो ये टेंजेंट देखो रेड में जो रेड लाइन जो ड्रॉ करती है, ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रहा है ये टाइम एक्सिस से, इट इज मेकिंग θ1, तो उसको लिख लिया θ1। उसी तरह से ये जो Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ये जो ब्लू में ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, तो वो वही आएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन। तो ये एंगल कितना बना रहा है, θ2 बना रहा है, ठीक, और ये R पॉइंट पे अगर देखोगे तो R पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन जो ड्रॉ किया हुआ है पर्पल में वो है, और ये R पॉइंट है, तो ये एंगल कितना बना रहा है टाइम एक्सिस से, इट इज मेकिंग θ3, ठीक है। तो तुम बताओ, ग्राफ में ही देख के तुमको पता चल रहा होगा, मतलब θ1 θ2 एंड θ3 को देखो क्लियरली, ठीक है, तो इससे तुमको क्या दिख रहा है कि tan θ2 जो बीच वाला है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन tan θ3, सही बात है ना, θ2 जो θ2 है इट इज ग्रेटर देन θ3 एंड इट इज फर्दर ग्रेटर देन θ1, यहाँ पे θ1 सबसे छोटा है तो इट इज ग्रेटर देन tan θ1,
तो tan थीटा क्या देता है, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, यानी कि वेलोसिटी एट पॉइंट Q, इस पॉइंट पे, दिस इज आवर Q पॉइंट, विल बी ग्रेटर देन विच पॉइंट, वेलोसिटी एट पॉइंट R, ठीक है, एंड इट विल बी फर्दर ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट P। इतना दूर तो सबको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है उस पॉइंट का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो P पॉइंट का जो वेलोसिटी वो सबसे कम है इस केस में, राइट। तो अब आगे इसको कैसे समझेंगे हम लोग, इन द गिवन ग्राफ वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 10 सेकंड्स टू t इक्वल टू 15 सेकंड, वही देखने वाली बात थी जो हम तुमको बता रहे थे अभी कि t इक्वल टू 10 सेकंड ये है मेरा पॉइंट, ये है ना। तो ग्राफ में जब देखोगे तो दिस इज द पॉइंट t इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है। और t इक्वल टू 15 सेकंड, 15 सेकंड मतलब क्या, ये दिस पॉइंट इज 12, दिस पॉइंट इज 14, तो 15 कहाँ आएगा, कहीं इसके बीचों बीच आएगा, मतलब ये वाला जो जो हम बात कर रहे थे ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट को अगर इसके परपेंडिकुलर, अगर इसके परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करके आके यहाँ टाइम एक्सिस पे ले आओगे तो दिस टाइम इज 15 सेकंड, ठीक है। तो इस टाइम इंटरवल के बीच में ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है कर्व का, मतलब ये एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन है कर्व का, ठीक है। तो वही बोला गया है कि t इक्वल टू 10 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 15 सेकंड तक इट रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ द कर्व इज सेम इन दिस टाइम इंटरवल। तो स्लोप हर पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक सेम है, ठीक है। तो वो सेम होगा तो उसका वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पे सेम होगा उस ड्यूरेशन में, 10 टू 15 सेकंड में, ठीक है। तो इसको अब आगे तुम आराम से निकाल सकते हो, वही चीज देखो यहाँ पे क्लियर और बनाया हुआ है, यही ए पॉइंट और बी पॉइंट का बात कर रहे थे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो इस गिवन वैल्यू से अब निकालना था तुमको एग्जैक्ट वैल्यू की वेलोसिटी क्या होगा। तो जब तुमको पता हो गया कि ए से लेके बी के बीच में हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर हम इस लाइन का ए बी लाइन, ये जो ए बी, ए पॉइंट को देखो, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है, और ए बी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, और उसको तुम टाइम इंटरवल में चेक करो, t इक्वल टू 10 सेकंड पे ए है और बी कितना पे है, t इक्वल टू 14 सेकंड पे हमने लिया है, ठीक है। इस बीच में भी वो स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो इस बीच में उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, देखो t इक्वल टू 10 सेकंड जब था तो उसका वैल्यू कितना था, पोजीशन क्या था, 0.4 मीटर, और जब t इक्वल टू 14 सेकंड जब टाइम हुआ तो उसका वैल्यू कितना था, पोजीशन का 1.4 मीटर, ठीक है। तो तुम अब सिंपल हो गया ना, ये ऐसा ट्राइंगल यहाँ बन गया ना, ठीक है, मतलब ये बेस हो गया, ठीक है। उसका इसका बेस कितना है 4, टाइम के हिसाब से 14 माइनस 10 इज 4, और ये वाला उसका परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 1.4 माइनस 0.4, दैट दिस इज 1। तो सिंपल हो गया, वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी सेम एट एवरी पॉइंट, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी अगर निकाल लोगे तो हर पॉइंट का वेलोसिटी निकल जाएगा, तो इट विल बी व्हाट 1.4 माइनस 0.4, ये समझ गए जो भी बताएं इसका परपेंडिकुलर निकालने के लिए। और उसका बेस कितना आएगा, बेस विल बी सिंपली 14 माइनस 10, ठीक है। तो दिस इज p बाई बी, तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1/4, तो दिस इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। और वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में वेलोसिटी का वैल्यू सेम रहेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वेलोसिटी का वैल्यू सेम रहेगा, कितना रहेगा, इट विल बी 0.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इसी बीच में ये क्यू पॉइंट भी आ रहा था ना, अभी जो हम लोग लॉजिकली देख लिए थे ना कि tan थीटा वी क्यू इज ग्रेटेस्ट, वी क्यू इज ग्रेटर देन वी आर ग्रेटर देन वी पी, ठीक है। तो इसीलिए वी क्यू का भी वेलोसिटी सेम हुआ 0.25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो उसी लाइन में लाई कर रहा है, ए बी लाइन में। क्लियर है, समझ में आ गया कि ग्राफ से देख के कैसे इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। ये भी आई इरोडोव का ही प्रॉब्लम था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन लेक्चर 2, ठीक है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज इट मूव्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अभी तक तुम बोलते हो अभी तक तो सर हम खाली एक्स एक्सिस देख रहे थे, तो यार तो एक्स एक्सिस मान लो ऐसा होता है तो वाई एक्सिस ऐसा होता है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम बताए थे ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या स्लैंटेड हो, बट इट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। तो वही मतलब होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक्स एक्सिस रहे वाई एक्सिस रहे, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। वाई एक्सिस गिवन है y इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 4t, इसको ऐसे पढ़ते हैं, राइट। ये साइन फंक्शन है ये, है ना, with t in seconds and y in meters. What is the average velocity of the particle between t equal to 0 to t equal to 2 second, and what is the instantaneous velocity of the particle at t equal to 0, 1 and 2 second? इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, सिंपली y दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है तुमको, y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1, सिंपल, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या था y1, तो अगर y1 ले रहे हैं तो t इक्वल टू 0 पुट कर दो इस फॉर्मूला में, तो वो क्या आएगा 2 साइन पाई बाई 4 इंटू 0, तो पाई बाई 4 इंटू 0 क्या होगा 0, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 डिग्री जो हाउ मच, इट इज 0, तो इट विल बी
y1 is 0. ओके, नाउ t इक्वल टू 2 सेकंड, तो अगेन वही t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दो, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल y2 क्या आएगा, 2 sin पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई t, तो t इज हाउ मच 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 2 sin पाई बाई 2, राइट, ये 2 और ये 4 ऐसा कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 हो गया, sin पाई बाई 2 मीन्स व्हाट, साइन के अंदर अगर पाई बाई 2 है तो इट मीन्स पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, तो साइन 90 इज हाउ मच 1, तो 2 इंटू साइन 90, 2 इंटू 1 इट विल बी 2, राइट। तो जब तुमको y1 पता हो गया, y2 पता हो गया, टाइम तुमको पता है, तो तुम v एवरेज नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, इट इज सिंपली y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 बाई t2 माइनस t1, 2 माइनस 0, तो अगेन तो हाउ मच व्हाट इज योर आंसर, इट इज 1 मीटर पर सेकंड, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का तुम्हें फॉर्मूला पता है, अगर तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्लोप निकालना पड़ता है। स्लोप निकालना पड़ता है मतलब क्या, कि उसका डिफरेंशिएट कर देना होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, याद करो, इक्वेशन दिया हुआ है, राइट, y और t इक्वेशन दिया हुआ है, तो याद करो पिछले लेक्चर में हम बताए थे तुमको कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने दो तरीके से, एक ग्राफ से, दूसरा इक्वेशन से। तो अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो सिंपली क्या करते हैं, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही यहाँ पे करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dt, d बाई dt, ये डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स याद होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, तुमको क्लियर हो जाएगा हर चीज, स्लोप निकालना, डिफरेंशिएट करना, बेसिक डिफरेंशिएशन, सब चीज तुमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू डू डिफरेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dy बाई dt सॉल्व कर लो, तो d बाई dt ऑफ हाउ मच, 2 sin पाई बाई 4t, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले आओ। अब डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला याद रखना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ at बाई dt, ठीक है, ये क्या होता है, a बाहर आ जाएगा, चूंकि कांस्टेंट था तो a बाहर आ गया, और अंदर में साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ठीक है, तो cos a ऑफ t, क्योंकि at अंदर में था तो वहां बाद में भी cos ऑफ at रहेगा। तो खैर ये तब फॉर्मूला तुमको बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो हम तुमको वो समय ही बताए थे कि तुमको वो सब चीज याद रखना है, राइट। तो d ऑफ साइन at बाई dt क्या होता है, a टाइम्स cos at, ठीक, तो इसी चीज को यहाँ पे रख दो, तो a क्या है तुम्हारा 2 है, इस केस में 2 नहीं है, a नहीं है, ये तो कांस्टेंट है मेरा 2, तो ये यहाँ पे 2 आ गया। a क्या है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को बाहर ले आओ, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू कॉस, अगेन जो अंदर में साइन का था वही चीज यहाँ लिख देना है, तो पाई बाई 4 t। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से। तो v इक्वल टू सॉल्व कर लो, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 4t, तो दिस इज योर वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन आ गया। अब जब वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन आ गया तो हम तुमको उस समय ही बताए थे कि जब वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है डिफरेंशिएट करके, तो अब इसमें टाइम इंटरवल तुम कुछ भी पुट करो, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू -1, t इक्वल टू -10, t इक्वल टू 2, 3, 4, वट एवर यू वांट, वो पुट करते जाओ और उसका v का वैल्यू निकालते जाओ, तो वो उस इंस्टेंट का वैल्यू तुमको देता जाएगा, ठीक है। तो हमें कहाँ का निकालना है, t इक्वल टू 0 पे निकालना है, 1 पे निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है। सिंपल है, t इक्वल टू 0 पे पुट कर दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू पाई बाई 2 cos 0, क्यों, t 0 है तो t को 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 डिग्री इज 1, ठीक है, तो इट बिकम सिंपली पाई बाई 2 इंटू 1 इज पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड। यू कैन लीव योर आंसर हियर ऑल्सो, और एल्स यहाँ पे पाई का मतलब 180 डिग्री नहीं होता है, जब साइन या कॉस के अंदर में जब पाई आता है, ठीक है, तो दिस इज, ये क्या होगा, दिस इज इन डिग्रीज, राइट, है ना। अब अगर तुम्हारा बाहर में है, सिंपली पाई लिखा हुआ है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, याद है ना, ये सिंपल वाला जो पाई है, तो ये चूंकि बाहर आ गया है तो इट इज पाई बाई 2 का वैल्यू होगा 3.14 बाई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एनीवेज ये सब ग्रेजुअली तुमको धीरे धीरे न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओगे तो ये सब का यूज टू हो जाओगे इन सब चीजों से। तो फर्स्ट केस में t इक्वल टू 0 पे पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड में फिर से t इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 को ले आओ, तो पाई बाई 2 रूट 2 मीटर पर सेकंड, ठीक। t इक्वल टू 2 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या होगा, पाई बाई 2 कॉस t इक्वल टू 2, तो 2 पुट करोगे तो 2 ये अंदर का वैल्यू टर्म क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 90 0, तो वेलोसिटी विल बी 0 एट t इक्वल टू 2 सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें हम एक एडिशनल चीज तुमको बताना चाहते हैं, तुमको अब ग्रेजुअली अब तुम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करना स्टार्ट करो कि ये जो फंक्शन है, जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे वो तो अभी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। लेकिन जिनका बायो है उनके लिए सिंपल सा बता रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लो सिर्फ, ये जो ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, इसको साइनसोइडल ग्राफ कहते हैं, इसी को साइन फंक्शन कहते हैं, जो तुम लोग पढ़े थे ना उस समय तक 10th 9th 10th में, साइन थीटा जो बोलते हो, ठीक है, तो ये साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल,
ठीक है। तो ये इसी को साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, मतलब कोई भी ग्राफ ऐसा अगर चलता है तो दिस इज साइन थीटा का ग्राफ है ये, ठीक है। क्योंकि साइन जीरो तुमको याद होगा कितना होता है साइन जीरो इज जीरो, तो देखो यहाँ पे जीरो है इसका वैल्यू, ठीक है। और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो देखो यहाँ पे इसका 1 होता है वैल्यू, इन जनरल अभी बता रहे हैं पहले, ठीक। फिर साइन 180 देखोगे तो कितना होता है 0, तो देखो यहाँ पे 0 वैल्यू, तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इस केस में हम तुमको ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो t इक्वल टू 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितना आ रहा है π/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये देखो y वर्सेस t, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, समझ में आ रहा है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम का जब ग्राफ दिया रहता है तो किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना होता है, सिंपल है, वहाँ उस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे स्लोप निकालना है, तो ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा है वो टेंजेंट वहाँ ड्रॉन है, राइट। तो ये देखो ये एंगल क्या बना रहा है थीटा, ठीक है। तो कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते, तो इसका वैल्यू तुमको t इक्वल टू 0 पे कितना आता, कुछ आता ना tan थीटा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होता, तो इसलिए आ रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू है π/2 मीटर पर सेकंड। उसी तरह t इक्वल टू 1 सेकंड पे देखो, तो 1 सेकंड पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये देखो ब्लू लाइन में, तो यहाँ पे भी तुमको इसका वैल्यू कुछ आता है ये एंगल, तो ये भी अभी एक्यूट एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आता है, तो ये भी देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है t इक्वल टू 1 सेकंड पे। और t इक्वल टू 2 सेकंड पे बात करें अगर, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ रहा है 0, तो t इक्वल टू 2 सेकंड कहाँ है, ये पॉइंट t इक्वल टू सेकंड देखो, ये जो ग्रीन वाला देखो, दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये एंगल कितना बना रहा है 0, समझ रहे हो, dy/dt स्लोप, तो ये 0 बना रहा है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। क्लियर है। तो दोनों तरीके से तुमको समझा दिए, ये भी बना के और ग्राफ भी बना के तुमको दिखा दिए कि क्या हुआ एग्जैक्टली ग्राफ में, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। This is also challenge yourself question from lecture 2. Figure gives the velocity of a particle moving along an axis. Point 1 is at the highest point on the curve, ये वाला point 1, और ये velocity time ग्राफ है, ये देख लो velocity time, ये भी ध्यान रखना भाई, एग्जाम में हम स्टूडेंट्स को ये भी देखे हैं कि velocity time ग्राफ दिया रहेगा उसको वो पोजीशन टाइम ग्राफ देख के बनाने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये सब गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो इसलिए ध्यान से दिमाग खोल के रखना है, ठीक। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पॉइंट 1 इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट 4 इज एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट्स 2 and 6 आर एट द सेम हेड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड b पॉइंट 4। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये बताना है, क्योंकि एक ही एक्सिस के अराउंड जा रहा है। मान लो वो एक्स एक्सिस के अराउंड जा रहा था, सपोज करो, ठीक है, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में दो डायरेक्शन हो सकता है ना, अगर ये 0 है तो इस साइड क्या होगा पॉजिटिव और इस साइड क्या होगा नेगेटिव, समझ में आ रहा है, यही तो होगा। तो अब तुम याद करो कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो किसके डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। तो अगर वेलोसिटी जिस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 0 पे देखो, ये t इक्वल टू 0 है, तो वेलोसिटी क्या है, ये तो प्लस एक्सिस है ना, तो वेलोसिटी का कुछ वैल्यू है, कुछ भी होगा, मान लो +1 मीटर पर सेकंड हो या कुछ भी हो, तो प्लस में है, तो प्लस में है तो यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा, प्लस के डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है। और जब उसका माइनस में है, जैसे पॉइंट 4 पे इसका देखोगे वेलोसिटी तो किधर है, ये नेगेटिव में होगा, 0 के नीचे, ये 0 था तो ये नेगेटिव होगा, राइट। तो अगर माइनस में है तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा होगा, नेगेटिव के डायरेक्शन में हो रहा होगा, समझ में आया। तो ये मीनिंग था इस क्वेश्चन का। एनीवेज, तो इसका सॉल्यूशन यही है सिंपल, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी पॉजिटिव है, हाँ भाई है पॉजिटिव, तो पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द गिवन एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो जो भी हो, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, अभी बता दिए तुमको। और पॉइंट 4 पे वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, ये देखो पॉइंट 4 है यहाँ पे, हाँ भाई वेलोसिटी क्या है, इट इज नेगेटिव, तो दैट इज वाई नेगेटिव, इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट विच ऑफ द 6 नंबर्ड पॉइंट्स डज द पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। रिवर्स इट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल याद करो, हम तुमको उस समय भी समझाए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का मतलब क्या होता है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो कहाँ से वो क्रॉस करेगा, 0 से क्रॉस करेगा, या नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो यानी कि नेगेटिव से वो पहले 0 होगा फिर पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों केस में वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये एक्स एक्सिस था मान लो और ये 0 पॉइंट था, ठीक है, तो दिस साइड इज प्लस एंड दिस साइड इज माइनस, राइट। तो मान लो ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल यहाँ से मूव 0 से प्लस डायरेक्शन में मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, फिर ये यहाँ से ऐसा यू टर्न लिया होगा, फिर वापस इधर आया, ठीक, और फिर अब इधर से इधर जाने लगा, समझ में आ गया। तो ये क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है तुमको, वेलोसिटी वापस से अगर 0 हुआ और ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव होने लगा। तो इसका मतलब भी यही होता है कि जब वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस से माइनस हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस से माइनस हो गया, उसी टाइम पे उसने क्या किया, पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया। जैसे इस केस में क्या बताए थे हम, यहाँ से पार्टिकल इस तरफ जा रहा था तो इट वाज प्लस, अब इस पॉइंट पे जब पहुंचा तो इसने
अपना इसका वेलोसिटी अब नेगेटिव हो जाएगा जब अगर इधर मुड़ के उल्टा डायरेक्शन में चलने लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे नेगेटिव हो गया का क्या मतलब हुआ कि इसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, 180 डिग्री अपोजिट जाने लगा। समझ में आया? तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हम ये समझाए थे। तो अब ये भी चीज इजी है, कोई भी निकाल लेगा इसको सिंपली। तो रिवर्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल कब? वेलोसिटी चेंजेस फॉर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस वीटी ग्राफ में, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें ये देखो कि पॉजिटिव से नेगेटिव किस किस पॉइंट पे हो रहा है, या नेगेटिव टू पॉजिटिव किस में हो रहा है। तो यहां तक देखो ये प्लस है, अभी भी प्लस है, प्लस ये भले घट रहा हो लेकिन प्लस में ही है अभी भी प्लस। अब यहाँ देखो टी, ये थर्ड 3 नंबर पॉइंट है यहाँ पे 3.3, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जीरो हो गया वेलोसिटी, दिस इज जीरो ना। तो 0.3 पे उसका वेलोसिटी जीरो हुआ, और उसके जस्ट बाद नीचे अगर आओगे तो वेलोसिटी अब क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये प्लस से माइनस में चेंज आया है यहाँ पे, करेक्ट। तो एक तो 0.3 हो गया, और दूसरा फिर ये नेगेटिव है, अब फिर नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, फिर 0.5 के पास आओ तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से जीरो वेलोसिटी, और फिर थोड़ा सा इसके ऊपर बढ़ोगे तो फिर से पॉजिटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव से कहाँ गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी होगा तो भी यानी कि वो उसका डायरेक्शन क्या हुआ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ऐसे रिवर्स कर गया होगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ऐसे रिवर्स किया होगा। समझ में आ रहा है? तो वो 0.5, तो 0.3 और 0.5 पे पार्टिकल अपना पोजीशन को रिवर्स कर लिया होगा, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। ठीक, क्लियर है? अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, पॉइंट्स वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। ये भी इजी है, तुमको हम उस समय भी समझाए थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज सिंपली इट इज आस्किंग फॉर dv बाई dt। समझ में आ रहा है? यही तो पूछ रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv बाई dt क्या होता है, दिस टर्म इज स्लोप, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो वीटी और वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते जाओ उस पॉइंट पे, सिंपल। ठीक है, स्लोप मतलब tan थीटा। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, 0.5 और 0.6 को देखो, ये वाला, ये जो ब्लू लाइन में 0.5 और 0.6, ठीक है। तो 0.5 और 0.6 में को देखोगे तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो हम एक ही में ड्रॉ किए, तुम दोनों में भी ड्रॉ कर लो। तो ये जो एंगल आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज में अगर थीटा बना रहा है तो दिस थीटा इज एक्यूट एंगल एंड इट इज मेकिंग द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। तो इसीलिए उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या पूछा है, जीरो। जीरो मतलब वो जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट्स पे तो वहां पे वो पैरेलल होना चाहिए टाइम एक्सिस के, है ना। तो ये जो ग्रीन लाइंस में दिख रहा है, ये दोनों ग्रीन लाइन, ये देखो 0.1 और 0.4 में ये क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है दोनों। तो यहाँ पे एंगल कितना हो रहा होगा, जीरो। तो जीरो को तो tan जीरो, स्लोप इज tan जीरो, tan जीरो इज जीरो। तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी उस समय क्या हो रहा होगा, इट विल बी जीरो, राइट। तो ये क्या है, पॉइंट्स 1 एंड 4। और नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ हो रहा होगा, जहाँ पे उसका स्लोप नेगेटिव आए। नेगेटिव आए मतलब देखो कैसे, 0.2 को देखो, 0.2 और 3 को बेसिकली। तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये पर्पल में जो दिख रहा है ये होगा, ठीक है, ये पर्पल में लाइन में जो है। तो इसका एंगल अगर ड्रॉ करोगे टाइम एक्सिस से, ये वाला चीज, राइट। तो ये एंगल अगर मान लो थीटा बना रहा है, अगेन थीटा वन मान लो बना रहा है, तो थीटा वन एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है, एक्यूट नहीं है, क्या है, ऑब्ट्यूस है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, राइट। और इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ऑब्ट्यूस है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो tan 90 से बड़ा जब हो जाता है तो वो नेगेटिव होता है, राइट। तो दैट इज नेगेटिव। और दूसरा वे क्या था बताने का, जो हम बताए थे, इस लाइन को अगर उल्टा डायरेक्शन में निकालते हैं, टाइम एक्सिस के नीचे का, तो ये वाला निकालते हैं, दिस एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर देखते तो ये क्लॉकवाइज है और एक्यूट है। अगर ये एंगल थीटा देखते तो ये किधर है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, और एक्यूट है, तो यानी कि क्या होता है, नेगेटिव। तो दैट इज वाई नेगेटिव किस किस पॉइंट पे है, 0.2 एंड 3। 0.3 पे थीटा इज एक्यूट एंड क्लॉकवाइज फ्रॉम टाइम एक्सिस। क्लियर है? तो यहाँ पे तुमने निकाल लिया पॉइंट्स वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज आल्सो चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन फ्रॉम लेक्चर 2। द पोजीशन, देखो द पोजीशन फंक्शन एक्स टी ऑफ अ पर्टिकुलर, वो तो सेम जो वही क्वेश्चन है। इसमें हमें जो लास्ट पार्ट निकाला था, ग्राफ एक्स वर्सेस टी फॉर द रेंज टी इक्वल टू -5 सेकंड से +5 सेकंड। अब इसमें हम एक चीज तुमको जल्दी से बताना चाहते हैं, ग्राफ आदमी कैसे प्लॉट करता है। मान लो एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना है, तो तुम लोग जो 9th 10th तक जो भी बेसिक कंस्ट्रक्शन पढ़े होगे उसमें क्या पढ़ते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हमें क्या पता होता है, एक्स का कोई पॉइंट वैल्यू पता होता है, मान लो एक्स इक्वल टू 1, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई कहाँ पे है वो हम प्लॉट कर लेते हैं, तो वो उसको मार्क कर लिए। फिर एक्स इक्वल टू 2 पे हमको उसका वैल्यू पता होता है, मान लो यहाँ है तो उसको मार्क कर लिए। फिर टी इक्वल टू 3, तो फिर वहाँ पे उसका वैल्यू मान लो यहाँ है तो उसको y का वैल्यू इतना है तो उसको ये मार्क कर लिए। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में भी किए होगे,
ठीक है, कि मान लो 0 पे x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 0 ही है तो यहाँ मार्क कर लिए, ऐसे करते थे ना -1 में, ठीक है, x इक्वल टू -1 में इसका वैल्यू यहाँ है, इस तरीके से मार्क करते चले गए। उसके बाद इसको पूरे कर्व को नॉर्मली ऐसे ज्वाइन करते हुए चलो तो ये तुमको कर्व बन जाता है, ऐसे ही करते थे ना, ये तो सिंपल है, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कर्व दिया रहा है तो कोई भी कर्व इसी तरीके से प्लॉट होता है। तो इस केस में तुमको क्या दिया हुआ है, किसका इक्वेशन दिया हुआ है, देखो तुमको यहाँ पे x इक्वल टू 4 माइनस 60 दिया हुआ है और तुमको प्लॉट क्या करना है, x एंड t, ठीक है, मतलब x इज ऑन द वर्टिकल एक्सिस पोजीशन एंड टाइम इज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, सिंपली तुम अपने हिसाब से भी टाइम का वैल्यू पुट करते जाओ अपने मर्जी से, t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू -1 पुट करो, t इक्वल टू -0.5 पुट करो, t इक्वल टू +0.5 पुट करो, ऐसे 5-8 पॉइंट निकाल लो और उसको सिंपली ग्राफ में प्लॉट कर दो, तो लॉजिकली इसी तरह से ग्राफ प्लॉट होगा, राइट। तो वही हमें करना है, x इक्वल टू 4 माइनस 60 स्क्वायर है तो t इक्वल टू -1 सेकंड पे x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पुट करो, x इक्वल टू 4 माइनस 6 इंटू -1 स्क्वायर, इट विल बी -2 मीटर, तो एक पॉइंट तुमको मिल गया t इक्वल टू -1 सेकंड पे। फिर एट t इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 सेकंड, जो लास्ट स्लाइड में जो हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यूज उसी को ले रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 निकाल चुके थे, एट t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट कर लो, वो क्या आएगा, x इक्वल टू 4 मीटर, और यहीं पे पार्टिकल रुका भी था, याद होगा तुमको, पार्टिकल स्टॉप्स, दिस मींस v इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट, राइट। फिर t इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 सेकंड पे कैलकुलेट करो, ये क्या आएगा, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकंड पे निकाल लो, x इक्वल टू -2, उसी तरह ये -5 से +5 बोला है तो तुम और भी कैलकुलेट कर लो, -2 -3 -4 -5, उसी तरह +2 +3 +4 +5, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। फिर इसको प्लॉट कैसे करोगे, तो वही जो भी बताएं तुमको, x और t के बीच में प्लॉट कर दोगे तो बेसिकली ये प्लॉट जो बनेगा वो ग्राफ का ऐसा बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ होगा तुमको, ये देखो, इधर टाइम एक्सिस है ऐसा, और इस साइड में क्या है, पोजीशन एक्सिस है इस साइड में, ठीक है। ये वाला लाइन बेसिकली, दिस लाइन, ये जो है ये पोजीशन का है ना, और ये वाला जो लाइन दिख रहा है दिस इज टाइम एक्सिस जो दिया हुआ है, ठीक है। डिवीजन से t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड, यहाँ पे ये 0 है, ये दिस इज x इक्वल टू 0 एंड t ऑल्सो 0, दिस इज x इक्वल टू 5, दिस इज x इक्वल टू 10, ठीक। अब x इक्वल टू 0 पे नहीं, t इक्वल टू 0 पे x हमारा कितना था, 4 मीटर, यहाँ प्लॉट कर लो, ये t इक्वल टू 0 पॉइंट है, एक मिनट रुको इसको क्लियर करते हैं पहले, देखो ये दिस इज t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे प्लॉट कर लो 4, ये देखो ये 4 आ गया, ये वाला पॉइंट, ठीक। उसके बाद t इक्वल टू -√2/3 सेकंड पे x कितना है, 0, तो -√2/3 सेकंड या करीब करीब यहाँ आता है, जहाँ पे ये टाइम एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये पॉइंट कितना है, x इक्वल टू 0, ठीक है। उसी तरीके से t इक्वल टू -1 सेकंड पे x इक्वल टू कितना था, -2, समझ में आ रहा है, t इक्वल टू -1 सेकंड, तो t इक्वल टू -1 सेकंड तुम्हारा क्या है, ये है, ये पॉइंट है t इक्वल टू -1 सेकंड, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितना है x का, दिस इज -2, समझ में आया, तो ये पॉइंट प्लॉट हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते जाते t इक्वल टू -2 पे, तो -2 पे इसका वैल्यू कितना होता है, -2 का स्क्वायर इज 4, 6 4 24, 4 -24 इज -20, तो दिस पॉइंट इज, देखो ये -20, t इक्वल टू 2 सेकंड पे -20, समझ में आ रहा है। उसी तरह आगे बढ़ते जाओ, t इक्वल टू +√2/3 सेकंड, तो दिस इज t इक्वल टू +√2/3 सेकंड, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 0, तो है x इक्वल टू 0। सिमिलरली x इक्वल टू t इक्वल टू 1 सेकंड पे x इक्वल टू माइनस, तो दिस इज t इक्वल टू 1 सेकंड, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, -2 अगेन। आगे बढ़ जाते हैं, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है, फिर से x इक्वल टू -20, तो इसको सबको अगर कर्व से अगर ज्वाइन कर देते तो इस तरह का तुमको कर्व मिल जाता बेसिकली, तो दिस इज द कर्व ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। इसको पैराबोला भी कहते हैं। जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे अभी 11th 12th, जहाँ पे जाके 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये सब चीज पढ़ेंगे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ्स वाले, लेकिन बायो वाले के लिए इतना मोर देन इनफ है जानने के लिए। तुम लोग का नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, आएगा भी तो वो दिया रहता है ग्राफ का, इसलिए परेशान नहीं होना है। और बेसिक अगर नहीं भी दिया होगा तो बेसिक इस तरह से निकालते हैं, ये हम तुमको समझा दिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So this is the last question, challenge yourself question of lecture 2. Figure shows velocity time graph, ये velocity time graph दिया हुआ था तुमको vt, ठीक है, एंड पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12 सेकंड, ये सब दिया हुआ है क्लियरली। अब निकालना है इतना सारा चीज है, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, ये। अब तुम याद करो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम तुमको बताए थे कि तुम आराम से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो अब बताओ, ये तो सबका बन गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है। अब बताए भी थे कि कैसे एरिया निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट में, एरिया टाइम एक्सिस के जो ऊपर होगा वो प्लस लेते हैं, टाइम एक्सिस के जो नीचे होगा उसको माइनस लेते हैं, और जो डिस्टेंस निकालते हैं तो टाइम एक्सिस के ऊपर रहे नीचे रहे कोई मतलब नहीं है, सबको सिंपली ऐड कर देते हैं, करेक्ट। बस तो बस बनाते जाओ इस क्वेश्चन को, कुछ है ही नहीं इसमें।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, एरिया ऑफ बेसिक शेप्स निकाल लेते हैं। इसमें बेसिक शेप्स क्या क्या है, देखो एक ये ट्राइंगल ए बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बी बन रहा है, ये टाइम एक्सिस के नीचे है, तीसरा ट्राइंगल ये एक सी बन रहा है, और चौथा ये डी बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला पूरा करेक्ट, सॉरी यहाँ तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। बस अब निकालते जाओ सबका एरिया। ट्राइंगल ए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेस कितना है पहले वाले केस में 4, 0 से 4 है ना, तो 4 माइनस 0 इज 4 इंटू हाइट, हाइट कितना है 2, ये 2 दिया हुआ है ना, समझ गए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यू विल गेट 4। ट्राइंगल बी में आ जाओ, ये है भाई बी का बेस कितना है, अगेन इट इज 4, 8 माइनस 4 इज हाउ मच, इट इज 4, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट अगेन कितना है, दिस इज 2, माइनस 2 नहीं देखना है अभी, सिर्फ 2, ठीक है, तो इट इज 2, तो अगेन इट इज 4। ट्राइंगल सी में आ जाओ, हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना है भाई 10 माइनस 8 इज 2, और हाइट कितना है अगेन इट इज 2, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 2। रेक्टेंगल डी, ये वाला डी को देख लो, डी का क्या है, इसका ये 2 है, और इधर भी 2 है, बेसिकली ये स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया था उसमें, उसका विथ बनाने में, तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, बट बेसिकली ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। डी का क्या होगा, रेक्टेंगल बोलो स्क्वायर बोलो जो बोलना है बोलो, 2 इंटू 2 इज 4। क्लियर, यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब चलो अब इसको देखते हैं कि इसमें अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 12 सेकंड, 12 सेकंड मतलब 0 से लेके पूरा 12 सेकंड तक का बात हो रहा है भैया, और वो भी डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो, सबका एरिया तुमको पता है, एरिया ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 14 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड 14 मीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं किसी को। सेकंड पार्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 12 सेकंड, मतलब 0 से लेकर 12 के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे, अब यहाँ पे बताओ क्या करें, ये एरिया क्या है टाइम एक्सिस के ऊपर, तो इसको क्या लेंगे प्लस, ये बी वाला क्या है टाइम एक्सिस के नीचे, तो इसको क्या लेंगे माइनस, ये कितना है ऊपर, तो इसको क्या लेंगे प्लस, और ये भी टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो इसको भी क्या लेंगे प्लस। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, याद होगा, इसमें लेते हैं प्लस माइनस साइन, बस कर दो, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, तो 4 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 4, तो यू विल गेट 6 मीटर, सो 6 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, यही तो होता है ना, तो फर्स्ट 10 सेकंड में पूछा है ना, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, उसी 10 सेकंड में बाई टाइम, तो टाइम तो 10 सेकंड है ही खैर, ठीक है, तो 10 सेकंड मतलब अब कहाँ तक तुमको आना है, बस तुमको इस पॉइंट से लेके कहाँ तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो यानी कि इन t इक्वल टू 0 से लेके 10 के बीच में जो जो एरिया आ रहे हैं बेसिक शेप्स के, बस उसी को कंसिडर करना है, राइट। तो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं 10 सेकंड का, क्या होगा एरिया विथ साइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज स्पीड नहीं निकालना, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए, ये प्लस था टाइम एक्सिस के ऊपर, बी माइनस था टाइम एक्सिस के नीचे, एंड प्लस सी, प्लस होगा क्योंकि टाइम एक्सिस के ऊपर, बस 10 सेकंड तक यही था मेरा, ठीक है, तो ये तीनों कर लो, तो इट विल कम 4 माइनस 4 प्लस 2, तो यू विल गेट 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, तो वी एवरेज कितना गया 2 बाई 10 सेकंड, तो इट इज 0.2 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट इज योर एवरेज स्पीड इन 8 सेकेंड्स, ठीक है, 8 सेकेंड मतलब अब तुम क्या बोलोगे, यू नीड टू कैलकुलेट स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, बट स्पीड में डिस्टेंस आता है, ठीक है, तो डिस्टेंस इन 8 सेकंड बाय टाइम, तो 8 सेकंड्स है ही, तो 8 सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करना है तुमको, 0 से लेके 8 सेकंड्स तक के बीच का जो जो एरिया है बस उसको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ दो ही एरिया है, ए है और बी है, और चूंकि डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सिंपली ऐड होगा, यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे, डिस्टेंस है तो यू ऐड देम, प्लस 4 इज 8 मीटर, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 8 बाई 8 इट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, इजी था। अब आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एट व्हाट टाइम इंटरवल पार्टिकल रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब तो तुम लोग आराम से बनाओगे एकदम खटखट, क्यों, डायरेक्शन मोशन रिवर्स कब करेगा, जब या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए वेलोसिटी का वैल्यू, राइट, तो कहाँ कहाँ हो रहा है, एक 4 सेकंड पे और दूसरा 8 सेकंड पे, अभी लास्ट में एक्सप्लेन किए थे ना, ये देखो यहाँ इसका वेलोसिटी पहले बढ़ता गया, फिर घटते 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 0 हुआ, 0 के बाद फिर अब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर ये घटने लगा नेगेटिव से, फिर ये 0 होगा, फिर ये प्लस डायरेक्शन में बढ़ने लगा, समझ में आया, यही ग्राफ था ये। तो पार्टिकल रिवर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन है t इक्वल टू 4 सेकंड एंड t इक्वल टू 8 सेकंड, ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम इंटरवल इन विच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, कोई बता सकता है वेलोसिटी इंक्रीज कहाँ से कहाँ कर रहा है, दिख रहा है ना भाई, ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 2 सेकंड है, t इक्वल टू 0 से 2 के बीच में पहले देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक बढ़ता जा रहा है ना इसका वैल्यू वेलोसिटी का, इस साइड में बढ़ रहा है ना, 0 से लेकर 2 तक जा रहा है ना वेलोसिटी, जैसे जैसे टाइम इधर बढ़ रहा है, तो ठीक है, तो 0 से 2 सेकंड तक में तो बढ़ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं,
अब बताओ, ये कोई बताया था कि नहीं, किसी का ये आंसर आया है कि नहीं, ये देख लेना। 4 to 6 सेकंड के बीच में भी इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, ये सबको क्लियर हुआ था? और नहीं हुआ तो अभी समझ लो इस चीज को। यहां तक रुको, एक बार इसको क्लियर करते हैं पहले। यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां पहले वेलोसिटी बढ़ा, फिर यहां से वेलोसिटी देखो घटना स्टार्ट हुआ, घटते 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 कहाँ आ गया, जीरो। यहाँ पे t = 4 सेकंड पे आके जीरो हो गया। फिर उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ही रिवर्स कर गया। अब ये मुड़ गया, मुड़ के अब देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब ये हो रहा है ना, बढ़ रहा है। जीरो तो ये मान लो -1 होगा, उसके बाद -2 आ गया, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो 4 to 6 सेकंड में भी उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस पहले अगर इधर जा रहा था प्लस के डायरेक्शन में, तो अब किधर जा रहा है, उल्टा डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो t = 4 to 6 सेकंड में भी इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। और दूसरा फिर क्या हो रहा है, अब t = 6 सेकंड से 8 सेकंड तक देखो। ठीक है, तो 6 = 6 से 8 सेकंड में अगर देखना स्टार्ट करोगे, तो अब इसका वेलोसिटी देखो घटना स्टार्ट हुआ 6 से 8 में। अभी -2 था, फिर थोड़ा देर बाद ये कम होगा। एक मिनट, इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अब देखो वेलोसिटी घटने लगेगा -1, फिर और कम होगा तो -0.5, फिर आते आते कहाँ आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि 6 to 8 सेकंड में वो घटेगा, और फिर 8 से 10 सेकंड के बीच में ये बढ़ने लगेगा वेलोसिटी, है ना। और 10 to 12 के बाद तो खैर कांस्टेंट है। तो डिक्रीजिंग कहाँ का हो गया, इंक्रीजिंग कहाँ का हुआ, t = 0 to 2, 4 to 6 एंड 8 to 10। क्लियर है। डिक्रीजिंग अभी अभी देख लिए, डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ हो रहा था बताओ, 2 से 4 सेकंड ये वाले इंटरवल में, ये वाले इंटरवल में 2 से 4 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया है। और दूसरा डिक्रीज कहाँ हुआ है, 6 to 8 सेकंड में डिक्रीज हुआ है। समझ में आ गया, मैक्सिमम से जीरो आया, यहाँ भी मैक्सिमम से जीरो आया, तो डेट इज डिक्रीज। तो डिक्रीज हो गया 2 to 4 एंड 6 to 8 सेकंड। और कांस्टेंट कहाँ से रहा है, 10 to 12 सेकंड। ये देखो 10 to 12 सेकंड में ये वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह वैल्यू सेम है, कितना, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक और पार्ट था इसमें ना, इसमें एक और पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा था इन टाइम t = 10 सेकंड में। आप पूछा था वो क्वेश्चन की पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 10 सेकंड। t = 10 सेकंड में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल निकालने का मतलब क्या है कि t = 10 सेकंड तक का उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा हमको, यही तो होगा ना पोजीशन। तब तो अगर, और t वो क्या बोला था कि इनिशियली वो x = 0 पे था, तो t = 0 पे, x = 0 पे है, और तुमको t = 10 सेकंड पे पूछ रहा है उसका कि उसका पोजीशन बताओ या कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो क्या बताओगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, डिस्टेंस नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है। उसमें हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पार्टिकल ऐसे गया होगा और फिर हो सकता है ऐसे घूम के ऐसे आ गया हो। ठीक है, तो डिस्टेंस करोगे तो गलत हो जाएगा, ये x = 0 था तुम्हारा पॉइंट, और यहाँ आ गया, तो इट शुड बी फाइनल माइनस इनिशियल ओनली, तो सो दिस विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यू नीड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन t = 10 सेकंड कितना आया था, a - b + c, तो 2 मीटर। तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 10 सेकंड इज हाउ मच, x = 2 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, बन गया ये सब क्वेश्चन। अब इसमें हम तुमको एक चीज समझाना चाहते हैं इसी ग्राफ वाले प्रॉब्लम में, कि एक्चुअल में अगर रियलाइज करोगे ये ग्राफ को देख के, कि एक्चुअल में मान लो कोई पार्टिकल, ये जो रेड में यहाँ पे बना हुआ है, अगर ऐसा कोई पार्टिकल मूव करता P और Q के बीच में, ठीक है, P, ये P पॉइंट है, एंड दिस इज x = 0, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, है ना, और वो इधर से इधर मूव करता है, एंड दिस डायरेक्शन इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ। तो उल्टा अगर आएगा तो क्या होगा, वो डेट विल बी माइनस। समझ आ गया। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अब हम वो तुमको दिखाते हैं, अच्छे से ध्यान से समझना। देखो t = 0 से लेके 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या था, धीरे धीरे बढ़ा था, और कहाँ तक पहुंचा, 2 मीटर पर सेकंड। तो वही बनाया है यहाँ पे, देखो ये पार्टिकल जब आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, तो 0 से लेके 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैक्सिमम कब हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, कब, 2 सेकंड पे, यही दिखाया है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, t = 2 से 4 सेकंड में, t = 2 यहाँ से लेके 4 सेकंड में इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, राइट। और 4 सेकंड पे 0 हो रहा है, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी घट रहा है, और 4 सेकंड पे आके कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। फिर आगे बढ़ो, अब 4 सेकंड के बाद देखोगे तो उसका वेलोसिटी क्या हो गया अचानक से, 4 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी अब नेगेटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है मतलब क्या, कि अब वो पार्टिकल जो था, ये बॉल जो था, अब वो उल्टा जाना स्टार्ट किया, मतलब अब वो Q से वापस P की तरफ जा रहा है। समझ में आया। तो 4 से 6 सेकंड के बीच में, यहाँ 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच में इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, माइनस के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दैट इज वाई 4 to 6 सेकंड में उसका वेलोसिटी बढ़ा, और एट t = 6 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए माइनस साइन। ठीक, नेक्स्ट
6 to 8 सेकंड में, 6 to 8 सेकंड में क्या हुआ भैया, 6 to 8 सेकंड में मेरा यहाँ तक देखो 6 सेकंड से लेके 8 सेकंड में ये अब -2 से अब इसका वेलोसिटी घटते 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 वापस से क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है? तो यानी कि 6 to 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी घटना स्टार्ट हुआ और 8 सेकंड जैसे हुआ t = 8 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब वो फिर से आके P पॉइंट पे आके रुक गया। ठीक, नेक्स्ट अब वो फिर से 8 सेकंड के बाद 8 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में अगर देखोगे तो वो क्या हो रहा है, फिर से उसका वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हुआ और बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, एट t = 10 सेकंड पे +2 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले वो पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे, फिर वो घूम के वापस इसी पॉइंट पे आया और अब फिर से क्या हुआ, फिर से ये घूम के वापस P से Q जा रहा है। ये समझ में आया? तब ना वो उसका डायरेक्शन प्लस हुआ। इसका मतलब है कि t = 8 से लेके 10 सेकंड के बीच में, 8 से लेके 10 सेकंड के बीच में उसका वेलोसिटी फिर से बढ़ा और कहां तक पहुंचा, 2 मीटर पर सेकंड तक बढ़ गया। t = 10 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 to 12 सेकंड के बीच में, पूरा 10 से लेके 12 सेकंड के बीच में इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ हाउ मच, 2 मीटर पर सेकंड। तो 2 मीटर पर सेकंड से वो मूव करता रहा। समझ में आया ये? तो दिस वाज द अप्रोच। ठीक है, कि कैसे समझते हैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, रियलिस्टिक पिक्चर लेके कैसे समझें कि पार्टिकल कैसे कैसे मूव किया होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। So I hope with the given concepts, whatever I had given you in my video lecture 1 and lecture 2, you must have easily solved all these problems. Questions काफ़ी अच्छे थे and conceptual थे और रियली मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने अपने दिमाग से, अगर खुद से दिमाग लगा के अगर इसको बनाया होगा, ठीक है, तो तुम्हारा जो प्रिपरेशन का लेवल है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो भी थे ये बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन थे और इसमें लॉजिक लगाना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस टाइम पे एक दो तीन बार ट्राई करके उसको छोड़ दो। ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, फिर 2-3 घंटे बाद से फिर दोबारा उस प्रॉब्लम पे आओ। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से सोचो, है ना। तुरंत से सॉल्यूशन देख लोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन देखोगे सॉल्यूशन देख लोगे, तुम्हारा दिमाग अप्लाई नहीं हुआ। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट अप्लाइंग योर ब्रेन, पहले ये समझ लेना। तो यू शुड ट्रेन योर ब्रेन, यू नो, टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वो ब्रेन का जब ट्रेनिंग होता है तभी वो आता है, ऐसे नहीं आएगा। मतलब तुम सिर्फ क्वेश्चन देखोगे तुरंत सॉल्यूशन देख लोगे तो तुम्हारा दिमाग क्या हुआ, वो दिमाग वो वर्कआउट नहीं किया। तो ठीक है, तो तेरे को अगर अपना बॉडी बनाना है, मसल बनाना है, तो तुम क्या करते हो, वर्कआउट करते हो ना, पूरा जिम में जाके वर्कआउट करते हो, तब तो ये सब मसल बनता है ना। तो उसी तरीके से जब इस तरह के क्वेश्चन बनाना हो, स्पेशली IIT के क्वेश्चन बनाना हो, नीट के क्वेश्चन बनाना हो, तो अपने ब्रेन का वर्कआउट कराना होगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रेन का वर्कआउट कैसे होगा, जब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे, उससे जूझोगे अच्छे से बैठ के कि यार ये कैसे हो रहा है, ऐसे क्यों वैसे क्यों, समझ रहे हो। then you will be able to solve them easily and then you will be able to train your brain and remember your brain cannot be trained in one day। ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो keep practicing these problems, these were beautiful questions, है ना। and my next video on kinematics will be out very soon। till then have a good time learning physics। thank you and bye for now। bye।